Hello viewers, I am Deepthi. In continuation for the solution of Physics ICSE Class 10 Improvement Paper for the year 2024-25, today I am going to solve section B. So starting with section B, question number 4. Study the table below and answer the questions that follow. Here water, glycerin, ethyl alcohol and vegetable oil in their refractive indices are given. 1.33, 47, 36 and 45 respectively. In A part, in which medium the speed of light will be minimum? So we know the relation between velocity, means speed and refractive index, they are inversely proportional. तो minimum speed किस में हो जाएगी जिसका maximum mu होगा? तो glycerin क्योंकि इसमें maximum refractive index 1.47 दिया है, तो in A part glycerin में speed light की minimum हो जाएगी. In B part, how will the ray bend with respect to normal while entering into glycerin from vegetable oil? From vegetable oil into glycerin. तो 1.45 से 47 में जा रही है. It means rarer to denser जा रही है. तो light ray will bend towards the normal. अगर rarer to denser जाती है तो towards the normal हो जाएगा. यहाँ पर बस आपने इतना सा आंसर लिखना है. In C part, for a ray to suffer total internal reflection in ethyl alcohol जिसका refractive index 1.36 है. What should be the pairing medium from the above table? तो किसके अंदर जा सकता है? हमें पता है total internal reflection के लिए light ray should enter from denser to rarer medium. तो it means ये denser है. अगर ethyl alcohol का 1.36 denser है, तो इससे rarer में से कौन सा दिखाई दे रहा है? सिर्फ 1.33 वाला rarer है. तो it means ये denser से rarer इस medium में जा सकता है. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा water, क्योंकि 1.33 water का refractive index है. तो in C part, light ray should enter in water, denser to rarer. In second part, diagram shows image of straws in glass 1 and glass 2. तो आपको straw दिखाए गए हैं. इधर लेफ्ट में glass 1 है, glass 2 है. Name the phenomena which is responsible for discontinuous appearance of straw in water. जहाँ से water का layer enter हो रहा है, मतलब straw water के अंदर enter हो रही है, वहाँ से वो discontinuous appearance हो रही है. तो आपको पता ही है light ray का आपने stick bending और ये सब diagrams अच्छे से draw किए हुए हैं. तो this phenomena is related with refraction of light. In B part, why is the difference AB minus CD greater in glass 1 as compared to the difference in glass 2? तो AB minus CD यानी कि शिफ्ट है. AB minus CD क्या है? AB एक लेयर आ रही है और CD जहाँ वो दिखाई दे रहा है, तो ये क्या आ गया? शिफ्ट आ गया. तो यहाँ पर ग्लास 1 में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये शिफ्ट है एंड शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम. जैसा कि आपको ग्लास ए में दिखाया गया, वाटर का लेवल ज़्यादा है और ग्लास 2 में वाटर का लेवल कम है. तो थिकनेस ऑफ द मीडियम ग्लास 1 में ज़्यादा है, तो इट इज़ मोर इन ग्लास 1 एज वाटर इज मोर इन ग्लास 1. तो यहाँ पर शिफ्ट जो है वो ग्लास 1 में ज़्यादा हो रहा है. इसीलिए आपने बेसिकली लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द मीडियम. शिफ्ट इज. In C part, if we replace water with a liquid of higher optical density, then what will be the effect on the difference AB minus CD? अगर हम कोई और लिक्विड ले लेते हैं वाटर की जगह जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? फिर से इंक्रीज हो जाएगा. AB minus CD और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अगर मैं ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी कर लूंगी तो इसका म्यू ज़्यादा होगा, यानी शिफ्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ पार्ट नंबर 2. In third part we have a diagram जिसमें आपको डायग्राम कंप्लीट करना है. फॉर एक्सरसाइज 4D में आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगर हम सेलेना की बात करेंगे तो P आ गया, R आ गया. अब इसमें वैसे तो हमें पता है कि अगर हम 90 30 60 वाला प्रिज्म लेते हैं तो इसमें हमारे पास DIR नहीं होता, लेकिन ये हम उसका एक्सेप्शनल केस कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास रे जो है वो हाइपोटेन्यूज के लोअर साइड में आ रही है. यहाँ से 90 डिग्री का एंगल है, तो जब 90 डिग्री के एंगल पे कोई भी रे किसी भी सरफेस पे एंटर होती है तो वो अनडेविएटेड जाती है. तो अनडेविएटेड ही सीधी अंदर जा रही है, इन्होंने दिखाया. बट क्योंकि ये लोअर पार्ट में है तो क्या हो जाएगा, जब ये इस सरफेस से स्ट्राइक होगी तो आंसर यहाँ पर कितना बनेगा? नॉर्मल के साथ यहाँ दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. 60 डिग्री बना रहा है और हमें क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है, तो 42 से मोर हो जाएगा. तो जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो इट मींस लाइट रे जो है वो आपकी 60 डिग्री का एंगल TIR बनाते हुए यहाँ पर करेगी, 60 डिग्री एंगल बनाएगी. दूसरी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, दूसरी सरफेस इज दिस इज PQ. तो PQ पे स्ट्राइक करेगी तो क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा. बस यहाँ पर आपने इतना दिखाना है. यहाँ अंदर जो है 30 डिग्री एंगल बन रहा है, दिस एंगल विद नॉर्मल इज मोर देन 30 डिग्री. तो यहाँ पर आपको ये डेविएशन दे देगा. अपने लाइट रे को इस तरह से कंप्लीट करना है. एरो जरूर होने चाहिए लाइट रेस के ऊपर.
कंप्लीट द पाथ ऑफ रे बी थ्रू द गिवन प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। तो हम पहले के लिए रीजन दे देंगे, एंगल 60 इज मोर देन 42, तो यहाँ पर TIR सफर होगा क्यू आर सरफेस पे, और जब क्यू आर से ये पी क्यू पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल आएगा, इंटरनल इंसिडेंस एंगल जो है वो 30 डिग्री का आएगा, देन एक्सटर्नल एंगल जो हो जाएगा वो मोर देन 30, यानी क्योंकि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। इन बी पार्ट स्ट्रेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सरफेस PR। अब PR वैसे तो हमारी हाइपोटेन्यूज है, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन का क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो है ही नहीं, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि इंसिडेंस 90 डिग्री पे हो रहा है तो कोई डेविएशन नहीं होगी, लाइट रे अनडेविएटेड जाएगी। यहाँ आइडियली पूछना चाहिए था PQ के लिए कि PQ सरफेस पे कैसे स्ट्राइक करेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मोर देन 30 डिग्री का आ जाएगा। होना यही चाहिए था कि बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि सफर कर रही है रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अगर इसके लिए पूछेंगे तो I 0 है तो R भी 0 हो जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि PR पूछा गया तो आप I 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी पे ही आ रहा है तो I 0 R 0 का आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। Coming to question number 5, an object is kept at a distance of 14 centimeter in front of a concave lens। तो U is given as 14 और हमें पता है कि U के साथ हमें नेगेटिव साइन लगाना है, इन फ्रंट है ऑफ ए कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ भी हमारे पास नेगेटिव में आएगा -21 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, U और F गिवन है तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। 1/F इज -21, U का आपके पास आ जाएगा -14, 21 और 14 का एलसीएम लेंगे आपके पास आएगा 42, तो -2 एंड देन -3, इट मीन्स -5/42। तो V कितना हो गया 42/5, माइनस में -8.4 सेंटीमीटर। तो आप ये देख रहे हो कि फोकल लेंथ के अंदर ही आ रहा है आपके पास, तो ठीक है आपके पास V का मतलब इमेज आपको पता है ना, कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा कम डिस्टेंस पे आता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बनना है उसने। नाउ इन B पार्ट, A पार्ट में सिर्फ आपको पोजीशन बताना था, तो V इज इक्वल टू -8.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस, जो हमेशा ही होता है। B पार्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, अगर हम ऑब्जेक्ट को और दूर लेकर आए हैं, और दूर लेके आने का मतलब मान लेते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसको हम और दूर ले आए, यानी कि यहाँ आ गया, दूर लेके गए हैं। What will be the effect on the size of the image? तो अब आप पहले खुद देखो, आपके पास एक रेस में ऐसे आती है, आप इसको ऊपर लेके जाते हैं, वो फोकस से आती है, फिर दूसरा हमारे पास इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जो जाते हैं वो अनडेविएटेड चले जाते हैं। अगर हम इसको दूर लेकर गए हैं, तो दूर लेकर गए हैं इट मींस वो रे हमारी यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ आपको देखना है। तो इमेज आपको साइज का क्या दिखाई दे रहा है, साइज का जो मतलब इमेज का जो साइज है वो क्या हो रहा है, इट डिक्रीजेस। तो आपने बस आंसर में डिक्रीजेस दिखाना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आप थोड़ा सा ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ करके अपना आंसर पूरी अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो डिक्रीज में आप लिख देंगे इसके साथ। In second part, a uniform half meter ruler is balanced at 30 centimeter mark। तो आपके पास हाफ मीटर रूलर है, दिस इज 0, दिस इज 50 सेंटीमीटर। तो हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगी, 25 सेंटीमीटर पे आएगी, यानी कि वेट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करेगा। नाउ बैलेंस एट 30 सेंटीमीटर मार्क पे हम उसको बैलेंस करवा रहे हैं 30 सेंटीमीटर पे, इट मीन हमें कोई ना कोई वेट वहाँ पे हैंग करना पड़ेगा। तो 30 पे हमारे पास फल्क्रम आ गया। अब वेट हमें कहाँ पर हैंग किया, मैंने वेट ऑफ 50 GF सस्पेंडेड फ्रॉम 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर पे हमने ऑलरेडी वेट हैंग किया है उसको बैलेंस करवाने के लिए 50 GF का। तो 50 GF का वेट यहाँ पर ऑलरेडी सस्पेंड हमने कर दिया। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर रूल, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी 25 सेंटीमीटर पे आएगा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। फल्क्रम यहाँ पर है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा और इस तरफ हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा। अब बैलेंस पोजीशन के लिए हमें क्या करना ही होता है, हमें इसे बताना क्या वेट ऑफ द। तो वेट के लिए आपको पता ही है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, या आप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पूरा लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल होना चाहिए। एंटी किसका है, W वाली साइड का। यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है डिस्टेंस, इट इज 30 - 25। फल्क्रम से सारे डिस्टेंसेस लेने हैं और वेट तक का हम 25 यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेंगे। यहाँ पर हमारा F आ गया W के इक्वल। इस तरह से क्लॉकवाइज वाली साइड यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है 40 - 30 और यहाँ पर आपने वेट कितना किया है 50, यानी कि 10 × 50। W का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5। W इज इक्वल टू
50 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 500. 500 डिवाइड बाई 5 इट मीन्स 100. तो 100 और GF जो यूनिट होता है वही आप ले लेना है. तो वेट ऑफ द रूलर जो हो जाएगा वो आपके पास आ गया 100 GF. ये आपका आंसर है. इन थर्ड पार्ट, when sunlight enters Earth's atmosphere, which color of light is scattered the most? Which color? Blue color. Blue light is scattered the most due to its short wavelength. हम सबको पता है उसकी wavelength near about 4000 Armstrong होती है, सबसे कम है, इसीलिए उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है. वाई का रीज़न हम यही देंगे. बाकी आप साथ में लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो आई आता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है लैम्डा पावर 4 के. तो लैम्डा पावर 4 के, तो जितना लैम्डा कम होगा उतनी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा होगी. तो लैम्डा कम सबसे शॉर्टेस्ट हमारे पास ब्लू कलर का ही आता है. तो ब्लू लाइट विल स्कैटर्ड द मोस्ट because of its least wavelength. B part, arrange the following radiations in the decreasing order of their wavelength. आपके पास दी गई रेज हैं एक्स रेज, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड देन अल्ट्रावायलेट. ये 4 रेज दी गई हैं, तो इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगाना है. तो डिक्रीजिंग मतलब माइक्रोवेव हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे, सबसे ज्यादा क्योंकि माइक्रो की होती है. 10⁻6 to 10⁻10 की रेंज में आ जाता है अगर हम नैनोमीटर में बात करेंगे. तो माइक्रोवेव का सबसे पहले आ गया, उसके बाद आ जाएगा इंफ्रारेड, देन हमारे पास आएगा अल्ट्रावायलेट और फिर लास्ट में आएगा एक्सरे का. तो आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रा एंड देन एक्सरेज, क्योंकि एक्सरेज की सिर्फ 1 नैनोमीटर के अराउंड होती है. Now name the radiation used to detect the purity of gems. तो इसमें आ गया अल्ट्रावायलेट. आपको मैंने बताया हुआ अपनी वीडियो में जो मेरे सिलेबस के रिगार्डिंग बनाई है जिसमें डेली टॉपिक्स भी हैं कि माइक्रोवेव्स में हमारे पास जो भी वेव्स हैं आपको इनका एग्जैक्ट नहीं पता होना चाहिए, चाहे वेवलेंथ चाहे फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपको ऑर्डर जरूर पता होना चाहिए. ऑर्डर पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. और रेडिएशंस में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये दोनों आपने सब कुछ इनका बहुत अच्छे से करना है. Now coming to question number 6 which is from chapter unit sound. तो साउंड का न्यूमेरिकल यहाँ पर आ रहा है आपके पास और अच्छा इजी सा न्यूमेरिकल है जिसका आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर भी चेक हो जाएगा. Now question number 6 part 1. A workman is hammering a lamppost into the ground. Some distance ahead is a vertical wall है. यहाँ पर हम मान लेते हैं ये vertical wall given है. यहाँ पर आपके पास एक person है जो hammering कर रहा है. Some distance ahead is vertical wall. A boy is standing at the base of the wall. यहाँ पर एक boy खड़ा है. The speed of the sound in air is 330 meter per second, जो हमें पता ही है 330 meter per second. It takes 1.5 second for the sound of hammer to reach the boy. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हैमर हो रहा है, हैमरिंग के यहाँ से लेकर यहाँ साउंड को जाने में 1.5 सेकेंड्स का टाइम यूज हो रहा है. So a girl is standing at some distance behind the post. यहाँ पर इसी के पीछे एक गर्ल भी, यहाँ पर ये this is the position of girl and this is the position of boy. How long after the hammer strikes will the girl be able to hear its echo? गर्ल को कितनी देर बाद एको सुनाई देगा? गर्ल की पोजीशन यहाँ हमने ले ली है, ठीक है, बिल्कुल जितना एग्जैक्टली मिडवे हैमरिंग हो रही है, यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर गर्ल है. हाउ लॉन्ग आफ्टर द हैमर स्ट्राइक्स विल द गर्ल बी एबल टू हियर इट्स एको? तो कितना टाइम लगेगा? एक तरफ का टाइम जो है वो हमारे पास कितना आया, 1.5 सेकेंड. पहले यहाँ पर जाएगा साउंड, फिर एको, एको वर्ड बोला ना, अगर उसने नॉर्मल बोला होता तो गर्ल को डायरेक्ट साउंड भी तो आ रही है, 1.5 सेकेंड गर्ल का भी होता, लेकिन उसने एको वर्ड बोल दिया. तो एको मीन्स 1.5 सेकेंड पहले जाएगी, फिर 1.5 आएगी और फिर 1.5 जाएगी, यानी कि 4.5 सेकेंड्स के बाद गर्ल को एको सुनाई देगा. इसको हम न्यूमेरिकल की तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. हमें पता है टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, डिस्टेंस कितना आ रहा है तो उसके लिए हमें बस पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. नाउ डिस्टेंस अगर हम लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 330 की स्पीड दी हुई है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम कितना है, 1.5 सेकेंड का. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 495 मीटर. डिस्टेंस 495 मीटर का आ गया. तो टाइम कितना हो जाएगा? अब टाइम निकालने के लिए भी आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि गर्ल तक का लेना है. तो पहले 495 इधर गया, फिर यहाँ तक वापस 495 आया और फिर 495 गर्ल तक वापस जाएगा. तो डिस्टेंस हमारे पास इसका 495 इंटू 3 हो जाएगा और डिवाइड बाय स्पीड तो 330 है ही है. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 1485 एंड डिवाइडेड बाय 330 अगेन 4.5 सेकेंड. तो आप दोनों मेथड से इसमें अपना चेकिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की. तो 4.5 सेकेंड आ रहा है. सेकेंड है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम द वॉल?
तो गर्ल का वॉल से कितना हो गया 495 ये है 495 ये है, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द वॉल इज 495 प्लस 495, इट मीन्स आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 990 मीटर। तो ये आ गया गर्ल का डिस्टेंस वॉल से। In second part, during the initiation of spinning of the tub in a washing machine, the machine experienced violent jolts and the side panels begin to vibrate loudly. जब स्टार्टिंग में वॉशिंग मशीन ऑन करते हो तो आप देखते हो कई बार उसमें बहुत जर्क्स आते हैं, जॉल्ट्स आते हैं, पैनल हिलना शुरू हो जाता है। नेम द फिनोमेना व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। पेपर में जो क्वेश्चन समझ ना आए साउंड चैप्टर से रिलेटेड उसका आंसर रेजोनेंस ही होता है, तो यहाँ पर आंसर है रेजोनेंस। बी पार्ट, How will you explain the cause of this loud noise to your mother? आप कैसे बताओगे उनको? When the frequency of spinning tub, जब वो spin कर रहा था उसकी frequency of washing machine matches with the natural frequency of the washing machine, then vibration of large amplitude will be produced there. Large amplitude का मतलब loud sound will be heard. तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ व्हाई डज द लाउड नॉइज स्टॉप आफ्टर सम टाइम? कुछ देर के बाद वो लाउड नॉइज जो है वो रुक क्यों जाएगी? क्योंकि हमने स्पीड चेंज हो गई। जब अब स्टार्टिंग में स्पीड कम थी, फिर तेज तेज घूमना शुरू हो जाएगा, तो जब स्पीड चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, तो रेजोनेंस आकर नहीं होगा और लाउड साउंड अपने आप खत्म हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ जो हमारे स्पिनिंग टब है उसकी स्पीड इंक्रीज होने की वजह से वो लाउड साउंड खत्म हो गई है। लास्ट है इसका थर्ड पार्ट, डिफाइन क्वालिटी ऑफ साउंड। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश द टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी या सेम पिच but emitted by two different sources या two different instruments because of the change in their wave form। तो जो wave form में change आएगा उससे change आएगा वो quality होगा, उसमें loudness same है, pitch same है, दोनों चीजें सेम रहेंगी। इन बी पार्ट आपको ग्राफ दिया गया है, वेव ए बी सी तीनों के लिए दिया गया है। वेव ए का एम्पलीट्यूड 2 तक जा रहा है, +2 एंड -2, और बाकी दोनों में 1 तक जा रहा है। तो इसको स्टडी करने के बाद विच वन इज द लाउडेस्ट, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वेव ए में, तो वेव ए विल हैव लाउडेस्ट साउंड। विच वन इज श्रिलेस्ट, श्रिल कौन सा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आपको नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं बी वेव फॉर्म में, तो मोर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास, बी में आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस वेव सी, जो तीसरा वाला वेव दिख रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेव बी what change needs to be made in the same string। अब सेम स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग वही रह रहा है, धागा वही रह रही है, हम थिकनेस चेंज नहीं कर सकते, बट उस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो पहले सी वेव प्रोड्यूस कर रहा था अब बी वेव प्रोड्यूस करे। बी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि पिच आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, तो क्या कर सकते हैं? बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और बाय इंक्रीजिंग द टेंशन, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है, F इज इक्वल टू 1/2L अंडर द रूट T अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। पाई आर स्क्वायर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने सेम स्ट्रिंग बोल दिया, तो हम लेंथ को कर सकते हैं। तो लेंथ को हम उल्टा, जब हमने इंक्रीज करना है तो हम डिक्रीज कर देंगे, लेंथ को इनवर्सली है, तो बाय डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और बाय इंक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग हम ये चीज कर सकते हैं। In question number 7 part 1, figure below shows a disc of radius 6 cm. Total radius is 6 cm that can rotate freely about its center O. It is in equilibrium due to forces F1 and F2 acting on it. Which of the two forces F1 और F2 is greater? दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो हमें पता है कि अगर इक्वल है, क्योंकि वो एबल है रोटेट होने के लिए, इट मीन्स दोनों का मोमेंट सेम आ रहा है। तो मोमेंट सेम आने का मतलब क्या हो गया? पहले वाले फोर्स का मोमेंट कितना हो जाएगा? F1, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ से ये सेंटर दिखाया गया हमें O, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है? 2 सेंटीमीटर। उधर से जब हम F2 लेंगे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पे जाके जा रहा है, लेकिन इसका डिस्टेंस सेंटर से यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ ना देके यहाँ दिया गया है डायग्राम में आपको, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स F1 एंड F2 विच इज ग्रेटर। तो ग्रेटर देखने के लिए हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा, तो हम F2 को नीचे ले जाते हैं, 4 वहीं रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2:1। तो क्योंकि F1 और F2 में से 2:1 है, तो इट मीन्स F1 इज ग्रेटर देन F2, ये आपने बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ F1 एंड F2? रेशियो विल बी 2:1 बी पार्ट। इन सी पार्ट, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 is changed to P, यानी कि यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर ले आएंगे तो ये पूरा रेडियस कंसिडर होगा, OP यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, along PO, then state the direction of rotation of wheel। तो अगर हम इसको इस पॉइंट पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सी पार्ट में लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। In second part, 3 balls A, B and C of mass 1 kg, तीनों का ही mass 1 kg is given।
each for are released from a certain height in the diagram, मतलब height भी fix है. Their initial potential energy is 50 joule. तीनों की ही potential energy is 50 joule. The velocities with which they touch the ground are given in the diagram. तो पहले होनी कितनी चाहिए हमें कैलकुलेट कर देते हैं. Potential energy is equal to kinetic energy half mv square. V square is equal to 50 into 2 upon mass. Mass is 1. So V square is equal to 100. So V is equal to 10 meter per second होनी चाहिए ideally. Which ball is contradicting the law of conservation of energy? तो हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, होना चाहिए था 10. तो हम ये मान सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर ये एनर्जी वेस्ट हो गई होगी. सेकंड पार्ट में 10 आ रहा है जो कि हमारा करेक्ट है. थर्ड पार्ट में हमारे पास v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है. तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट किस में आ रही है आपके पास सी बॉल के लिए है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगी जितनी हमने प्रोवाइड ही नहीं करी है. हाइट पे 50 जूल थी. बी पार्ट में जस्टिफाई योर आंसर इन ए ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर एनर्जी माइट बी वेस्टेड, यानी कि जिसको हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, तो हो सकता है 8 मीटर पर सेकंड हो गया. सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू काइनेटिक एनर्जी और आइडियली वो 10 ही होना चाहिए, ठीक है. थर्ड पार्ट में v इज इक्वल टू 12 है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो जस्टिफाई हम इस तरह से कर सकते हैं. In third part, draw a label diagram of block and tackle system of pulley with VR equal to 3. अब VR आपको 3 दिया गया है, तो इतना मतलब हमारे पास 3 पुलिस आ जाएंगी. 3 पुलिस का रफ स्केच बनाएंगे. आपके पास 2 अपर ब्लॉक में आ सकती हैं, तो 2 अपर ब्लॉक में आ गई, 1 लोअर ब्लॉक में आ जाएगी. अब एल ओ से हम इसको याद रखते हैं, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पुलिस है तो लोअर हुक से हमने स्टार्ट करना है. तो लोअर ब्लॉक के हुक से हम स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे. दिस विल गो लाइक दिस एंड देन हमारा एफर्ट जो है वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाएगा. टेंशन अपर डायरेक्शन में आ जाएगी. रिजिड सपोर्ट दिखानी है, एक्सेल दिखाने हैं, हुक दिखाना है. लोड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एरो भी हमने दिखाना है. टेंशन को 3 जगह पे दिखाना जरूरी है, क्योंकि 3 है. 3 आपके पास 3 का मतलब 3 जगह पे आपने टेंशन दिखानी है. Why is there no unit to mechanical advantage? Because it is the ratio of two similar quantities. That is why mechanical advantage as well as velocity ratio का भी कोई यूनिट नहीं होता. Now coming to question number 8, जिसमें आपके पास रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, जिसमें 2 रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है. अब 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होंगे तो इट मींस हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी आ रही है. यहाँ पर आपके पास सेल लगा हुआ है, देन एक आपके पास 3 ओम का रेजिस्टर एंड देन 6 ओम, 3 एंड देन 6. तो 1/6 प्लस 1/3 इट मींस 6 आ गया. 1 प्लस 2 3/6 इट मींस 1/2. तो पैरेलल रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन कितना आ गया 2 ओम. नाउ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट I V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R. V क्वेश्चन में आपको 6 वोल्ट गिवन है, तो 6 अपॉन R इट मींस 3 एम्पियर इज द करंट ड्रॉन. The ratio of the current to 3 ohm and 6 ohm resistor. हम जब 3 ओम वाले में निकालेंगे, यानी कि हम उसको I1 मान लेते हैं या 3 वाले से निकाल लेते हैं कि करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, तो 3 वाले में जब लेंगे तो हम 6 ओम को ऊपर रखेंगे. 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस 6 इट मीन 6/9 आ जाएगा, यानी कि 2/3 आपके पास आंसर आ जाएगा. करंट थ्रू 6 ओम वाले ब्रांच में जब जाएगा तो हम 3 को ऊपर रखेंगे और नीचे 6 प्लस 3 ही रहेगा, तो 3/9 मीन्स 1/3 आ जाएगा. रेशियो हमने देना है, तो करंट थ्रू 3 एंड करंट थ्रू 6 इट मीन्स 2/3 एंड 1/3. तो 2/3 इंटू 3/1 इट मीन्स रेशियो विल बी 2/1. The 2:1 का रेशियो आ जाएगा. In second part, name the following with respect to household circuit. The device that protects the main ring circuit. A main ring circuit is connected in the distribution box. Distribution box which contains MCB, miniature circuit breaker of rating 30 एम्पियर, या फिर आप फ्यूजेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर MCB होती है प्रॉपर, जिसकी रेटिंग 30 एम्पियर की आती है आपके पास. बी पार्ट, एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर, तो क्या बोलते हैं इसको हम शॉर्ट सर्किट. इन सी पार्ट, द थिकेस्ट पिन इन 3 पिन प्लग. 3 पिन प्लग में सबसे मोटी ऊपर जो पिन होती है थिक वाली, दिस इज अर्थ, तो अर्थ के लिए है. इन थर्ड पार्ट, in general what is the frequency of the domestic supply voltage in India. फ्रीक्वेंसी कितनी है, सप्लाई 220 वोल्ट है लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज. इन बी पार्ट, an AC dynamo of a cycle is a small device which is located near the wheel of the bicycle. As the cycle is pedaled, the rotation of the wheel causes the internal component of the dynamo to move, producing electric current. यानी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी से. नेम द प्रिंसिपल ऑन विच डायनामो वर्क. बेसिकली डायनामो हम जनरेटर को ही बोलते हैं, तो किस पे काम कर रहा है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, EMF is induced. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट अकर्स इन डायनेमो. डायनेमो में हमने क्या दिया बाहर से, मोशन यानी मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हाउ डज द स्पीड ऑफ द बाइसिकल इफेक्ट द आउटपुट ऑफ द डायनेमो. इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बाइसिकल देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इंक्रीज्ड. विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो ओवर. क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट, न्यूमेरिकल फ्रॉम हीट यानी कैलोरीमेट्री. x ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस. तो इधर हमने हॉट ले लिया और दूसरी तरफ हम कोल्ड ले लेते हैं. हॉट वाटर का मास इज इक्वल टू x ग्राम हमें दिया गया है एट ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज 50 डिग्री सेल्सियस. इज मिक्स्ड विद y ग्राम यानी मास इसके केस में y ग्राम का दिया गया ऑफ कोल्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज 5 डिग्री सेल्सियस. इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 20, तो बीच का फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है. देन कैलकुलेट द रेशियो x/y, नेग्लेक्ट द हीट टेकन बाय द कैलोरीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन्ड बाय कौन लेगा, बाय कोल्ड वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर. तो दोनों ले लेंगे. हॉट वाटर के केस में mc डेल्टा t. हॉट का m कितना है, x है. c तो दोनों केसेस में c लिखेंगे हम. एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों तरफ वाटर ही है तो लिक्विड सेम है. हॉट वाटर के लिए कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 50 - 20. सो 50 - 20. इधर कोल्ड में जाएंगे, हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, तो m हो गया बाय c सेम रहेगा. और टेम्परेचर यहाँ कितना है, 20 - 5. 20 - 5 इज इक्वल टू 15c. c तो खैर कैंसिल ही हो जाएगा, c को यहीं पे छोड़ देते हैं हम. इधर से y 16y इज इक्वल टू 30x. हमें रेशियो बताना है यहाँ पे x/y. तो x वाली साइड में यहाँ y को ले जाएंगे. यहाँ पर 15 रहेगा, 15/30 यानी कि 1:2. एक बात तो एग्जामिनर को 1:2 का रेशियो बहुत पसंद है. बार बार हर क्वेश्चन में वही आ रहा है, या तो 2:1 या तो 1:2. तो 1:2 का आंसर आ रहा है यहाँ पे. Second part, define specific latent heat of fusion. तो heat energy released when unit mass of substance at 0 degree Celsius liquid freezes to 0 degree Celsius solid. State the SI unit of specific latent heat of fusion. It is joule per kg. SI unit देना तो per kg में आएगा. C. Why is there no change in temperature during the change of a phase of a substance? हीट एनर्जी सप्लाइड जितनी भी हमने दी है इज यूटिलाइज्ड ओनली इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो उसमें चेंज ही नहीं होगी क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है. तो पोटेंशियल एनर्जी को यानी कि पार्टिकल्स के बीच की जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होती है उसको इंक्रीज करने में यूज हो जाती है. तो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इसीलिए रह जाता है क्योंकि सारी की सारी हीट एनर्जी जो हमने दी है वो यूटिलाइज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए. Third part, to reduce the radiation emitted from a radioactive source, a student suggests to store it in a freezing unit which is maintained at -30 degrees Celsius. Is the given suggestion correct? No, it is not a correct suggestion. Give a reason for your answer. Because radioactivity is a nuclear phenomena. Any physical and chemical change does not change the nature of the radiations. In B part, a beta particle is a high energy electron. Which part of an atom emits this electron? कहाँ से निकलता है beta particle? From the nucleus of an atom. In C part, name a nuclear radiation with highest ionizing power. It is alpha. It is 10,000 times than gamma. तो alpha का होता है. With this I conclude my today's video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Hope जो मैंने answers दिए हैं उससे आप अपने marks आराम से tally कर पाएंगे. Thank you.